السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ موضوع رزق کے سلسلے میں ہے، یعنی مال و دولت کے سلسلے میں ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو کثیر المال یعنی مالدار شخص، دوسرا طبقہ وہ ہے جو درمیانہ ہو، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ادنی درجے کا ہو، یعنی غریب، فقیر، مسکین۔ تینوں کے بارے میں آج انشاءاللہ بات کروں گا۔ پہلا طبقہ مالدار کا ہے، پھر اس میں بھی 2 کیٹیگری ہے، 2 کوالٹی ہے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ نے خوب مال عطا کیا ہو اور اس مال کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس مال کے ذریعے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو، خوب مال دیا ہو، لیکن اس مال کے ذریعے وہ اتراتا ہو، تکبر کرتا ہو۔ دونوں کا انجام کیا ہے؟ تاریخ اس بات پر ہے کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا، پھر اس مال کے ذریعے وہ اترانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہلاکت و برباد کر دیے۔ آپ جب تاریخ کی اوراق کو اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ قارون کا کیا حال ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی یعنی ہاران کے بیٹے قارون تھا، خوب مال و دولت والا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد وہ اس مال کے ذریعے ترانے لگا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال کے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے بہت ساروں کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور وہ قارون ہے۔ اسی طرح دوسری مثال فرعون کی ہے کہ اللہ نے بھی اسے حکومت دی، مال و دولت عطا کیا، لیکن اس مال و دولت کے ذریعے وہ خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے غرق کر دیا، اسے بھی ہلاکت و برباد کر دیا۔ لیکن جو پہلا طبقہ ہے کہ اللہ نے مال دیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور زیادہ مال عطا کرتے ہیں، اور وہ شخص اسی مال کے ذریعے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیتا ہے۔ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو اپنے مال ہی کے ذریعے جہنم اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، دوسرا کیٹیگری وہ ہے جو اسی مال کے ذریعے جنت اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثر لوگوں کی تعداد یہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہوا کرتا ہے، اور اسی پر مسلمانوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی دن بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ لیکن ایک کافر جو دن بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے خوب مال عطا کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے کہ ہم جس قدر یہاں پر اعمال کریں گے، جس قدر ہماری یہاں زندگی گزرے گی، اسی قدر ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔
حدیث میں آیا ہے کہ दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, यानी जेल है। क्या मतलब कि इस दुनिया में मुसलमानों पर अल्लाह पर ईमान लाने वाले पर मुसीबत आएंगी, और जो अल्लाह को नहीं मानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह दुनिया उसके लिए जन्नत है। अब थोड़ी सी ज़िंदगी है, वो मज़ा उठा ले, फिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम उसका ठिकाना है। लेकिन अगर हम सब्र करके अपनी ज़िंदगी को दुनिया में गुजार लेंगे क़नाअत के साथ, तो याद रखें मेरे भाई, कल क़यामत के दिन हमारा ठिकाना जन्नत होगा। तो खैर, तीन कैटेगरी के लोग हैं, तीन क्वालिटी के लोग हैं। एक तो वो जिसको अल्लाह ने खूब माल अता किया हो, फिर उसमें भी दो कैटेगरी है कि उस माल के ज़रिए इतराता हो। दूसरा कैटेगरी उस माल के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। अगर इतराता है तो अपना ठिकाना जहन्नम है, और अगर उस माल के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता है तो उसका ठिकाना जन्नत है। दूसरा तबका जो दुनिया में पाए जाते हैं वो ये है कि दरमियाना हो, यानी न कसीरुल माल हो न कलीलुल माल हो, कि भाई उसके पास ज़्यादा माल भी ना हो और कम माल भी ना हो, दरमियाना माल हो। तीसरा तबका अदना है, यानी जिसके पास माल ना हो, फ़कीरी ज़िंदगी गुजर रही है। आज इंशाअल्लाह दो पर बात करूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर किसी को माल अता नहीं किया है तो अल्लाह की मंशा है। अल्लाह कहता है अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अल्लाह लतीफ़ है, अपने बंदों पर मेहरबान है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी कर देता है, और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला कभी माल देकर आजमाता है कि वो बंदा मेरी इबादत करता है, मेरी इताअत करता है या नाफरमानी करता है, और कभी अल्लाह ताला माल ना देकर आजमाता है कि वो बंदा सब्र करता है या फिर मेरी नाशुक्री करता है। मेरे भाइयों, अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, जो तुम्हारी पास नियमतें हैं, अगरचे कलीलुल माल हो, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम सब्र करते हो, शुक्र अदा करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। और तारीख इस बात पर है कि जिसने भी सब्र किया, शुक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़े बड़े इनामात से नवाजे कि उसे गुमान भी नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क़ कहाँ से दिए। तो खुलासा कलाम ये निकला कि अगर हमें अल्लाह ने माल दिया तो उसके ज़रिए इतराना नहीं है, उसके ज़रिए तकब्बुर नहीं करना है, और अगर माल नहीं दिया है तो उस पर सब्र करना है। दौरे हाजिर में अगर हम गौर फिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को माल दिया है तो इसके ज़रिए तकब्बुर करता है, और जो गरीब है उनको तान व तशनीअ करता है कि इसके गरीब होने की वजह यह है कि अल्लाह इससे नाराज़ है। मेरे भाइयों, हरगिज़ इस तरह नहीं है। अगर गरीब होने की वजह अल्लाह की नाराज़गी होती तो कई सारे अंबिया, कई सारे सहाबा फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारे। क्या अल्लाह उनसे नाराज़ था? नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब दिया। लेकिन खुलास पता ये चला कि गरीबी या अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं है, और अमीरी या अल्लाह के राज़ी होने की निशानी नहीं है, अल्लाह के खुश होने की अलामत नहीं है। तो इसीलिए अगर अल्लाह ने माल दिया इसके ज़रिए इतराए ना। बाज़ लोग बाज़ दफ़ा कहते हैं कि अल्लाह ने हमें तो माल दिया है, फला गरीब है, फला पता नहीं क्या करेगा, क्या ज़िंदगी गुजारेगा। आज के ज़माने में यह हालत हो चुकी है कि आज लोग उलमा को अपनी बेटी निकाह करवाने से डरते हैं कि आज आलिम बनकर क्या करेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। मुझे तो सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात पर है कि आज के हुफ़्फ़ाज़ जो उम्र वाले हैं, उलमा जो उम्र वाले हैं, उनकी भी अब ये मिजाज बन चुका है, उनकी भी अब ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी का निकाह अच्छे से अच्छे प्रोफेसर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ हो। लेकिन उनको ये गुमान नहीं, उनको ये पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का मालिक है। जिसको चाहते हैं रिज़्क़ अता करते हैं, जिसको चाहते हैं उसके लिए रिज़्क़ की तंगी कर देते हैं।
تو दो बातों का पैगाम है कि अगर अल्लाह ने माल दिया तो उस पर शुक्र अदा करे ताकि अल्लाह और बढ़ा कर दे, और अगर अल्लाह ने माल नहीं दिया है, हालात मुसीबत वाली आ चुकी है आप पर, तो मेरे भाइयों सब्र करे। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस हालात से निकाल कर खुशगवार वाली ज़िंदगी में ले आएंगे। आप अगर तारीख़ का मुताला करेंगे तो जंग उहद में कई सारे सहाबा शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम सब्र करो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फतह पे फतह देते हैं। और इसी तरह कई सारे मुल्क वो लोग फतह कर लेते हैं और दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, और इसी तरह आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। खुलासा ये निकला कि हमें सब्र करना है। अगर अल्लाह ने मुसीबत दिया है, अगर अल्लाह ने हम पर आजमाइश किया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन पर सब्र करें। अब असल बात यह है कि अल्लाह चूँकि हर चीज़ का मालिक है, अगर आजमाता है तो उस पर सब्र करे। और अगर हम कलीलुल माल है, हमारे पास माल नहीं है, तो अल्लाह ने हीला भी बतलाए हैं, अल्लाह ने रास्ता भी दिखलाया है कि भाई तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए रिज़्क़ को वसी कर दूंगा, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा। 6 चीज़ें हैं कि अगर जिन पर अमल किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में वसी फरमा देते हैं और इंसान को मालदार बना देते हैं। पहली चीज़ है नमाज की पाबंदी। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों, हम कितनी ही तावीज़ दुआ गंडा कराते रहें, याद रखें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पहली चीज़ है नमाज की पाबंदी। दूसरी चीज़ है कि नमाज फजर के बाद यह आयत 70 मरतबा पढ़ी जाए, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स यह आयत 70 मरतबा नमाज फजर के बाद हर दिन ये पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में वसी फरमा देते हैं और उसे मालदार बना देते हैं। तीसरा जो काम है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। हदीस में है कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु हद्दतहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, यानी खूब कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर तंगी में उसके लिए वसी का रास्ता हमवार कर देंगे, हर मुसीबत में उसके लिए निजात का ज़रिया बना देंगे, उसके लिए निजात का रास्ता हमवार कर देंगे। मेरे भाइयों, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेंगे कि ला यहतसिब, इंसान को वहाँ से गुमान भी नहीं हो सकता। चौथी चीज़ ये है कि बाद मगरिब यानी मगरिब के नमाज के बाद सूरा वाक़िया को मामूल के साथ पढ़ना। अहादीस मुबारका और इसी तरह तारीख़ इस बात पर गवाह है कि जिन लोगों ने भी बाद नमाज मगरिब सूरा वाक़िया को अपना मामूल बना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसके रिज़्क़ में वसी फरमा देते हैं, उसकी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बना देते हैं। और छठी चीज़ मौजूदा नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। कुरानी आयत है, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अता करूँगा, वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, यकीनन मेरा अज़ाब सख्त है। क्या मतलब? क्या दुनिया में अल्लाह हो सकता है तो अज़ाब दे, आखिरत में अज़ाब हमारे लिए तैयार है, और दुनिया में अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल को हमारे से छीन ले, हमसे छीन ले। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो गरीब है, जो जिसको अल्लाह ने माल नहीं दिया या फिर उन पर आजमाइश है, तो ये 6 अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में वसी कर देंगे और इसी तरह उसके ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बना देंगे। और जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो दुआ करे कि अल्लाह इस माल को हमारे लिए
ذریعہ ہلاکت نہ بنا بلکہ ذریعہ نجات بنا۔ اور تاریخ اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے بھی جگہ میں صرف کیا، جن لوگوں نے بھی مال کو صحیح جگہ میں صرف کیا، اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازے ہے۔ قرآن بھی گواہ ہے کہ مؤمنین کی ایک صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون باللہ ویؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ کرنا کہاں ہے؟ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں صرف کریں گے، اس کے ذریعے سے تکبر کریں گے، دوسرے پر طعن و تشنیع کریں گے، تو یاد رکھے میرے بھائی، یہ مال بھی دینے والا اللہ ہے، اس مال کو چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ اگر آپ اس کے ذریعے ناشکری کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری زندگی فقیر سے بدتر ہو جائے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن باتوں کو میں نے کہا ہے ان پر اللہ آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔